میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے جب آپ اس کو ترتیب دیں گے۔ 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے، تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائیڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیار اسلامک بھائیو؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا پیارا بھائی محمد عفران آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آیا ہے۔ اس ویڈیو کا ٹاپک ہے رمضان میں شب قدر کی رات میں ایسی کون سی غلطی ہے جسے ہرگز نہ کرے۔ آئیے اس ویڈیو میں سنیں گے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبانی، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کچھ اس پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو۔ انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ شب احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق ممکنہ لیلۃ القدر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہائے کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے۔ وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے جب آپ اس کو ترتیب دیں گے۔ 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے، تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ہے ایک طرف، اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ہے ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائیڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی ہے، تو ایسا بندہ تو ہلاک ہونا ہی ہے، ایسے کو تو برباد ہونا ہی ہے جو رمضان پایا لیکن اس کی قدر نہیں کر سکا۔ تو میرے عزیزو، میں تمام نوجوانوں سے یہی کہوں گا
तुम्हारे लिए खेलने कूदने और दूसरे कामों के लिए और भी बहुत सारे औकात हैं, लेकिन इस पाकीज़ा वक्त को इस तरह ज़ाया ना करो। और जो देखने में मिलता है, इस रात को लोग दोस्त अहबाब के साथ निकल पड़ते हैं, चलो ऐश व इशरत करना है, कुछ घूमना है फिरना है, लोगों को परेशान करना है। बाहर अगरचे जाने ना मिले मगर अपने नौजवान बच्चे अपने ही मोहल्ले में लोगों को, पुलिस को परेशान करने के लिए निकलते हैं। तो क्या ये रात इस तरह के अय्याशियों के लिए आती है? क्या तुम इसको औरों की तरह, गैरों की तरह समझते हो कि एंटरटेनमेंट की एक रात है, दूसरों के त्योहारों की तरह रक्स करना, नाचना, शराब पीना, माज़अल्लाह? ये वो रात है जो तुम्हारे साबका गुनाहों को माफ करने की बशारत लेकर के आ रही है। तुम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो फिर एक बात ये भी याद रख लो, तुम में से किसी को ये बात खबर नहीं है, किसी को मालूम नहीं है कि अगला रमजान तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, नहीं मालूम है। यहाँ तो लाशें इस तरह से देखने को मिल रही हैं, रोजाना मौत की खबरें इस तरह आम हो चुकी है। तो आप अंदाजा करो कि अगर आपको अल्लाह ताला ने ये रात अता किया है तो यही सोच करके कि आप इबादत करो कि शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी, ये लैलतुल क़द्र शायद मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। जब ये तसव्वुर तुम्हारे अंदर आएगा तो इंशाअल्लाह इबादत का एक ज़ौक़ भी बढ़ जाएगा, लुत्फ़ भी आएगा और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा करके मांगोगे भी। इस तरह से मांगो कि मौला अगर ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी शब क़द्र है तो इस रात को बख्शे बगैर मुझे अपनी जगह से ना उठा, मेरा नाम बख्शे वो में शुमार फरमा। जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए और जब वापस होने लगे तो खाना काबा के पास आपने यूं दुआ फरमाई थी कि अल्लाह अगर ये मेरी आखिरी ज़ियारत है खाना काबा के पास तो फिर यहाँ से मौला हम सब की मगफिरत के बगैर हमें बाहर ना फरमा। तो इस तरह से आप इस रात को भी ये समझ करके दुआ करें कि अगर मेरी ज़िंदगी में और दोबारा रमज़ान आना नहीं है या लैलतुल क़द्र आने का हमारी ज़िंदगी में कोई नसीबा नहीं है तो मौला इस रात को ही हमें माफ़ फरमा दे और इसके बाद वाली ज़िंदगी को कबीरा और सगीरा गुनाहों से महफूज फरमा दे। ये लैलतुल क़द्र के सिलसिले में मेरे अजीज़ों इबादतों का एहतमाम करें। औरतें अपने घरों में बच्चों को भी लेकर, बच्चियों को भी लेकर बैठें। सिर्फ जागना असल मसला नहीं है। बाज़ लोग समझते हैं कि जागना चाहिए, जागने का मतलब मोबाइल लेकर बैठ कर के जागना, ये फजीलत की बात है। जागना उसके लिए अफजल है जो अपने आंखें कुरान की तिलावत में लगा चुका हो या अपने जिस्म को रब्बे जुल जलाल की इबादत में मसरूफ कर चुका हो। और अगर खाली जागना और गीबत करना, चुगली करना या वाहियात देखना है तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर है सो जाना उस आदमी का। वो सो जाएगा तो कुछ गुनाहों से बच जाएगा। तो ये महज गुनाह करने के लिए जागना ये अफजल नहीं है और ना ही इसमें कोई नेकी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला सबको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आज मैं खुसूसियत के साथ इस लैलतुल क़द्र में आप तमाम के सामने हाजिर आया हूँ एक दर्द दिल लेकर कि फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ जो हालात आज पेश आ रहे हैं, ये नई बात तो नहीं है। पिछले 70 सालों से वो इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब हद हो गई है मुसलमानों। मस्जिद अक्सा में, बैतुल मुक़द्दस में इजरायली पुलिस दाखिल होकर अपने जूतों समेत और गोलियों से मुसलमानों को निशाना बनाना। बाज़ाब्ता हमें वहाँ की जो खबरें आ रही हैं, लोग नमाज में मशगूल हैं, दुआओं में मशगूल हैं। कल बड़ी रात थी वहाँ पर, कल लैलतुल क़द्र थी, शब क़द्र के लिए वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं। वो पीछे आमीन कहने के लिए आ भी जाती हैं। उन सबको इन जालिमों ने निशाना बनाया है। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। क़िबला अव्वल हमारा, बैतुल मुक़द्दस हमारा, आज वहाँ खून की होली खेली जा रही है। अब मुझे यहाँ पर बात सिर्फ इतनी करनी है कि वो कहाँ गए सेकुलर के भूत, वो कहाँ गए जो इंसाफ और अमन और अमान की बात करने वाले। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, क्या उनके मुंह में घी लग गया है? क्या है आज इन मुसलमानों के खिलाफ जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इजराइलियों की तरफ से, इस पर कोई आवाज नहीं उठाता? ये दहशतगर्दी नहीं है?
मेरे अजीजों, आप समझो पूरी दुनिया एक तरफा दहशतगर्दी के लेवल को सिर्फ मुसलमानों पर चिस्पा करना चाहती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा दहशतगर्द है ये। इजरायली हुकूमत के अंडर में इस तरह की जो साजिशें हो रही हैं, आप सोचें किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के लोग जब इबादत में होते हैं तो गोया कि वो दुनिया से किनारा होकर अपने अपने खुदा के पास जा रहे हैं। यही तो उनका तस्वुर होता है। इबादतों के वक्त किसी को गोलियों का निशाना बनाना और सफों को दरहम बरहम करना और बच्चों पर भी गन तान लेना और वहां के नौजवानों के सर पर जूतियां रख करके खड़े हो जाना, औरतों के दुपट्टे खींच लेना, यह है एक चेहरा इजराइल का जिसको दुनिया बताना नहीं चाहती। और वो सब हद पार करके भी अमन के मसीहा हैं और दहशतगर्द हम हैं। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी कहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मेरे अजीजों, अब ये वक्त क़यामत के करीब का है। आप देखो कि तुम्हारा मसीहा है कौन, कौन तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाला है। तकरीबन 57 ममालिक इस्लामी नाम से जाने जाते हैं, उनमें का कोई लीडर सिवाय तुर्की या कुछ लोगों के, ये सारे अपने अय्याशियों में मसरूफ हैं। फिलिस्तीन के बच्चों को एक लुकमा खाना देने के लिए भी सऊदी अरब की हुकूमत तैयार नहीं, इमारात तैयार नहीं। ये तो इजराइल के साथ पेंगे बढ़ा रहे हैं, इजराइल के साथ मुआहदे करने चले हैं, अपनी प्रॉपर्टियां और अपने एयरपोर्ट उनको गिरवी देने के लिए चले हैं। समझने की आज जरूरत है, जहां इस्लामी मुल्क हम समझ रहे हैं, सऊदी हो या इमारात हो या बहरीन हो या कतर हो, ये तमाम ममालिक, इन सब की न जाने कौन सी मजबूरियां हैं या इनके घरों में कौन से यहूदी आकर दाखिल हो चुके हैं, ये वल्लाहु आलम। कि न सीरिया के मारे जाने वाले मुसलमानों के लिए बात करते हैं, न फिलिस्तीन के निहत्थे बच्चों के लिए बात करते हैं, न ये बर्मा के कत्ले आम पर कोई बात करते हैं। इनको तो कुछ लेना देना नहीं है उम्मत मुस्तफा से, बल्कि ये उल्टा उम्मत के इन गरीब मुसलमानों को ब्लेम करते हैं कि ये इस तरह दहशत फैलाते हैं। एक वक्त आएगा, देख लेना, इनकी कुर्सियां हिलेंगी। वक्त आएगा जब इनके ताज उछाले जाएंगे। ये सब बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे, इसलिए कि मैंने पढ़ा है कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चलेगी। जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये सदाए बाज़गश्त है, पलट करके वापस आना है। आपको पता है, मैंने देखा है फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों को जिन हालात में वो जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की पनाह। 35-35 साल, 40-40 साल से उनकी मार्केटों पर कर्फ्यू लगी है। कर्फ्यू समझते हैं, एक दिन 2 दिन कर्फ्यू लगे तो हमारी दुकानों पर ताला, और 40-40 साल से कर्फ्यू लगा करके रखे हैं कुछ मार्केट्स में, बाजारों में, दुकानों पर जाले लग चुके हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां और जायदादें हड़प करके इजरायली गसब करके बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी चीजें बिना इन अरब लीडरों की इजाजत के और उनकी मंजूरी के नहीं हो रही हैं। ये सब में इन लोगों की हमदर्दियां शामिल हैं।